What's up, guys? Hope you all are doing well. I am Sabina, and you all are welcome to Study Lover Sabina. Today we will discuss rational numbers. This is the first chapter of mathematics from class 8. Here we go. Yeah. Before starting the rational number, I will discuss one example. Suppose you have 3 oranges, okay, and you give one orange to other person. Then how many oranges do you have now? It will be 2. Now suppose you give 2 more oranges to other person. Now how many oranges do you have now? It is nothing. Okay. Now how you will represent this nothing in mathematics? It means it is 0. When you were having 1 orange, 2 orange, 3 orange, 4 orange, these all are called as natural numbers. Okay. And when we include this 0 to this group 1, 2, 3, 4 and so on, it becomes whole number. Okay. तो हमारे पास डिफरेंट नंबर्स के ग्रुप हुए. एक हुआ नेचुरल नंबर, जब हम कहते हैं हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड व्हेन वी इंक्लूड 0 टू दिस, देन इट बिकम्स अ होल नंबर. ओके. Now, suppose we have to subtract 5 from 8. That is 8 minus 5. How much you will get? We will get 3. Okay, no problem. But if we subtract 8 from 5, then we will get minus 3. Now, what is this minus here? We don't know anything related to this. Because in natural number, we have 1, 2, 3, 4. In whole number, we have 0, 1, 2, 3, 4. Now, when we include these negative numbers to our group, that is minus 1, minus 2 and so on, then 0, 1, 2, 3 and so on. It means this group is known as integers. Okay. Now, the number which can be represented in the form of P by Q, where Q is not equal to 0, these numbers are known as rational numbers. Now, what is P, what is Q? P and Q are the integers here. Means they can have any positive value, any negative value, any 0, but Q cannot be equal to 0. Okay, I have already defined that. Now, why we cannot take Q as 0, I will discuss it later on. Now, this is the definition of rational number. अब P by Q मतलब 6 by say it is 5. Now next is minus 5 by 2. All these are rational numbers. Suppose it is 6. 6 is a rational number. Yes? Yes, 6 is a rational number. Why? Because we can write it as 6 by 1. Means P by Q form में होना चाहिए क्या? तो 6 by 1 भी लिख सकते हैं हम इसे. But what about 0? 0 is a rational number. Yes, it can be represented as 0 by 1, 0 by 2, anything. But if we write 5 by 0, it is not defined. जब कोई number not defined है, तो we can't say anything about it. Means, इसीलिए हमने कहा कि Q is not equal to 0. कि means, denominator कभी भी 0 नहीं हो सकता है. 0 से हम किसी चीज को भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं. इट इज नॉट डिफाइंड. इसलिए हम रैशनल नंबर में Q जो है उसको 0 नहीं ले सकते हैं. बाकी सभी फ्रैक्शंस जो आपने अब तक पढ़े हैं वो सभी के सभी क्या है? रैशनल नंबर्स हैं. ओके. नाउ सी दिस चार्ट. अकॉर्डिंग टू दिस मैंने क्या किया है? नेचुरल नंबर को सबसे इनर मोस्ट सर्कल में रिप्रेजेंट किया है. इट मीन्स 1, 2 और 3 आ सकता है. जब हमने इसमें एक और 0 और ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? नेचुरल नंबर और साथ में 0 मीन्स होल नंबर बन गया. फिर नेक्स्ट सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर्स. मीन्स जिसमें नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और नेगेटिव नंबर्स भी हैं एंड सो ऑन. उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स किए. रैशनल नंबर्स मीन्स P by Q की फॉर्म में.
p बाय q वाला कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास इसमें इंटीजर्स, होल नंबर या नेचुरल नंबर्स में नहीं था, लेकिन वो रैशनल नंबर में है। मीन्स अब अगर हम बात करें कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, देखो होल नंबर की अगर हम बात करें तो अंदर वाला सर्कल तो उसके अंदर ही है, तो इट मीन्स एवरी जो इनर मोस्ट सर्कल है वो आउटर मोस्ट सर्कल के सभी चीजों को इंक्लूड करेगा ही करेगा। मीन्स अगर हम कहते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, it is true. But if I say every natural number is a whole number, then it is false. Similarly, every integer is a whole number. Every integer is a natural number. This is false. And if I say every integer is a whole number, every integer is a whole number, no, it is false. And if I say every whole number is an integer, it is true. Similarly, for rational number, every rational number is not an integer. Every rational number is not a whole number. Every rational number is not a natural number. But every natural number is a rational number. Every whole number is a rational number. Every integer is a rational number. Means जो inner most है वो तो सब इस घर के अंदर है ही, अंदर वाले जो रूम्स हैं वो घर के अंदर है, लेकिन घर जो है वो रूम्स के अंदर नहीं है। मीन्स जो जितने आप आउटर मोस्ट पे जाते रहेंगे वो सब चीजें जो है वो इनर मोस्ट के अंदर नहीं आएंगी, लेकिन जो इनर मोस्ट है वो तो आउटर मोस्ट के अंदर ही इंक्लूडेड है ना। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ एज पर मी रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर एक्चुअल में है क्या। मीन्स कोई भी फ्रैक्शन पार्ट जिसमें वो नेगेटिव भी हो सकता है, कोई नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, अब अगर मैं रैशनल नंबर का एग्जांपल लेती हूँ, सपोज आई से इट इज 5/2 और इट इज 2/5 or it can be -2/5 or it can be 2/-5। अगर मैं 2/-5 कहती हूँ या -2/5 कहती हूँ, these two are the same thing. Don't get confused. कहीं पे भी अगर डिनोमिनेटर के साथ किसी ने माइनस साइन लगा रखा है तो आप उसे न्यूमरेटर के साथ लगा लीजिएगा। ओके, सेकेंड थिंग, अगर मैं कहती हूँ कि -2/-5, इट मीन्स इट इज 2/5। एक्चुअल में हम इस दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज नेगेटिव साइंस। एक फ्रैक्शन के सामने एक ही नेगेटिव साइन लगाना है, वो चाहे आप न्यूमरेटर के साथ लगाओ या डिनोमिनेटर के साथ लगाओ, वो दोनों एक ही बात है। कोशिश करना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमेशा न्यूमरेटर के साथ रखना, इट विल नॉट क्रिएट मच कंफ्यूजन विद यू। सेकेंड थिंग, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो नेट टर्म हमारी क्या बन जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 2/5। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जब भी किसी रैशनल नंबर में हम उसे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन है 6/4, तो दोनों के दोनों ही हमारे 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 2 3 6, 2 2 4। तो जो ये 3/2 है इसमें p और q में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, जबकि 6/4 में दोनों के दोनों हमारे 2 की टेबल में आते थे। इट मीन्स 2 वाज द कॉमन टर्म इन दिस। लेकिन इन केस ऑफ 3/2 देयर इज नो कॉमन टर्म। इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, जनरली हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होंगे। ओके, now we will discuss some properties of the rational number. First property is closure property. Now what do you mean by closure property? Closure property का मीनिंग है कि हम उन रैशनल नंबर्स पे जिस चीज की भी हम वो क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं, से रैशनल नंबर की हो चाहे वो नेचुरल नंबर की हो। अब मान लीजिए वो रैशनल नंबर्स की हम क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं, तो जब हम दो रैशनल नंबर्स पे कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, चाहे वो ऑपरेशन एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, उन चारों में से जब भी हम उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो अगर आंसर हमारा वही सेम नंबर आता है, मींस अगर हमने नेचुरल नंबर्स को ऐड किया है तो आंसर नेचुरल नंबर आ रहा है, तो नेचुरल नंबर्स को हम कहेंगे कि दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अगर हमारा दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर नेचुरल नंबर नहीं आता है तो दे आर नॉट क्लोज्ड। क्लोज का मीनिंग है कि जिस
नंबर्स पे ऑपरेशन लगाया है वही टाइप, उसी टाइप का नंबर हमारे पास, उसी सेट का नंबर हमारे पास आउटपुट में आता है। यू गॉट माई पॉइंट। अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है। एडिशन के लिए और किस किस के लिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल एंड होल नंबर, तो दोनों सेम ही है, सिर्फ एक जीरो ऐड हो गया उसमें, तो बेटर है हम होल नंबर्स को ही डिफाइन कर लेते हैं, नेचुरल नंबर उसी में इंक्लूड हो जाएगा। सपोज कोई भी हमने होल नंबर लिया, से 1 is 5 एंड अदर 1 is 2, 5 plus 2 हम ऐड करते हैं, आंसर इज 7। ये भी होल नंबर था, ये भी होल नंबर था और ये भी होल नंबर है। यस, इट मीन्स होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, अब हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं एक इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या है, नंबर कैन बी नेगेटिव, नंबर कैन बी पॉजिटिव। सपोज इंटीजर्स हम लेके चलते हैं -5 एंड एक हम पॉजिटिव ले लेते हैं, से इट इज +2। इन दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर विल बी -3। -3 इज ऑल्सो इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। आप कोई भी एग्जांपल लेके चलिए इंटीजर में, हमारा आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। ओके, इट मीन्स दे आर ऑल्सो क्लोज्ड। +2 भी एक इंटीजर है, -5 भी एक इंटीजर है और -3 भी इंटीजर है। इट मीन्स जिस सेट के नंबर को, जिस टाइप का नंबर हमने लिया था, आउटपुट में हमें वही टाइप मिल रहा है। इट मीन्स होल नंबर्स भी हमारे एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मीन्स दे आर क्लोज्ड, और इंटीजर्स भी क्लोज्ड हैं। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स से एक ले लेते हैं हम 1/2 और दूसरा ले लेते हैं 5/2, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अब दे आर ऑलरेडी लाइक, एलसीएम लिया हमने 2, तो 1 + 5 दैट इज 6/2। 6/2 का मतलब क्या है, 2 3 जा 6, 3, इसको हम 3/1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट मीन्स दिस इज रैशनल। तो ये भी हमारा रैशनल था, ये भी हमारा रैशनल था और आंसर भी हमारा रैशनल आया। इट मीन्स रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज अंडर एडिशन। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी करते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर और अंडर सब्ट्रैक्शन हम चेक करना है हमें, ठीक है। अब जब हम अंडर सब्ट्रैक्शन इसे चेक करते हैं, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। से 1 नंबर इज 5, सेकेंड नंबर इज 3, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, आउटपुट इज 2। तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 2 आ रहा है। 2 इज अ होल नंबर। अब इसको देख के तो लगता है हमें इट इज क्लोज्ड, बट एक और एग्जांपल लेते हैं। हम 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर इज -2। -2 तो होल नंबर का पार्ट नहीं है, क्योंकि होल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। इट मीन्स एवरी केस में ये क्लोज नहीं है। जब एक भी केस में क्लोज नहीं है तो इट मीन्स हम इसे कहेंगे कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स की अगर हम बात करें, एक हमने लिया 5, दूसरा लिया हम -5 ले लेते हैं, दूसरा -3 ले लेते हैं, आंसर क्या आएगा, -8। अब हम -3 ले लेते हैं और इधर जो है वो +5 ले लेते हैं, आंसर विल बी 2। मीन्स आंसर चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, है तो इंटीजर ही ना। इट मीन्स integers are closed under subtraction. You got my point? They are closed under subtraction. Okay, अब हम एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल किसका लेंगे, रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अब रैशनल नंबर्स के केस में सपोज हमने लिया 1/2 एंड सेकेंड नंबर लिया, मान लीजिए फिर से हम वही -5/2 ही ले लेते हैं। माइनस साइन लगाया है, मतलब 5/2 और 1/2 इन दोनों पे हमने ऑपरेशन लगाया है सब्ट्रैक्शन का। जब हम इसे सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी -4/2, दैट इज -2/1। ओके, ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब हम 5/2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1/2 को, दैट विल कम आउट टू बी 4/2, दैट इज 2/1। अब 2/1 भी रैशनल नंबर है, मतलब चाहे नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर में हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। इट मीन्स रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, गॉट इट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड
ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में। अगर हम होल नंबर्स की बात करें, 5 इंटू 2 10 हो गया हमारा, 2 इंटू 5 2 इंटू 3 कर लीजिए 6, मीन्स हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, अगर हमारा होल नंबर्स है मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आंसर भी हमेशा हमारा होल नंबर ही आएगा। ओके, सेकेंड हम मीन्स दे आर क्लोज्ड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स का मतलब क्या है, हम एक नंबर को नेगेटिव ले लेते हैं, दूसरा नंबर पॉजिटिव ले लेते हैं, -10 हो गया, दोनों को नेगेटिव ले लेंगे तो +10 हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। मतलब आंसर भी हमारा क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। ठीक है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ठीक है, इट मीन्स दे आर ऑल्सो क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं थर्ड, रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स के केस में से हम एग्जांपल लेते हैं -5/2 एंड 2/3। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल कम आउट टू बी -5/3, दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2/5 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे हमारे, आंसर क्या आ जाएगा 3/5, विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिविजन। हाँ जी, अब हम होल नंबर्स की बात करते हैं। से इट इज 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5, आंसर विल कम आउट टू बी 2/5, which is a integer, sorry, which is a rational number, it is not a whole number, it means they are not closed under division. सेकेंड हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स के केस में अगर हम बात करें, हमने किया -2/5, आंसर विल कम आउट टू बी -2/5, विच इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स रैशनल नंबर, इट इज ऑल्सो नॉट क्लोज्ड। थर्ड हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर के केस में हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए एक हमने लिया रैशनल नंबर -2/5 और दूसरा लिया हमने 0, समथिंग अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड तो मीन्स जो आंसर आएगा विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। डिवीजन में कोई भी क्लोज नहीं होता, मीन्स समथिंग अपॉन 0 जो है वो नहीं होगा, हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो किस तीनों प्रॉपर्टीज को, तीनों नंबर्स के लिए हम ये डिफाइन कर सकते हैं, दिस अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट ए रैशनल नंबर, नॉट अ इंटीजर, नॉट अ होल नंबर, इट मीन्स दे आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ओके, नाउ आई थिंक क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी इसका, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उसी के बारे में है ये। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, एडिशन में नेचुरल नंबर क्लोज्ड होते हैं, होल नंबर भी क्लोज्ड होते हैं, इंटीजर्स भी क्लोज्ड है, रैशनल नंबर भी क्लोज्ड है। सेकंड अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन में, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, इंटीजर्स आर क्लोज्ड, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, बिकॉज जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटीजर एंड रैशनल नंबर। बट होल नंबर के केसेस में अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, तो इट मीन्स दे आर नॉट क्लोज्ड। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास चारों ही नंबर्स का सेट जो है वो क्लोज्ड होता है, जबकि डिवीजन के केस में हम बात कर रहे हैं तो कोई भी क्लोज नहीं होता है, बिकॉज समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है, मान लीजिए हम एडिशन की बात करते हैं, एडिशन का मतलब है a प्लस b, दो नंबर्स को ऐड करना। अगर हम नंबर्स को मूव करें, दैट इज a प्लस b में हमने b को पहले लिख दिया, a को बाद में लिख दिया, इट मीन्स b प्लस a। अगर हम नंबर्स को मूव करें तो भी आंसर अगर हमारा सेम आता है तो मीन्स वो जो नंबर्स हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो ऑब्वियस है, जब भी हम ऑर्डर को डिफरेंट कर दें, चाहे यहाँ पे हम 5 प्लस 2 ले लें तो वो 2 प्लस 5 के इक्वल होगा, अगर हम -5 प्लस माइनस का 2 ले लेंगे तो भी वो -2 प्लस -5 के इक्वल होगा। ओके, मीन्स चाहे आप होल नंबर लो, चाहे आप इंटीजर्स लो, चाहे आप रैशनल नंबर लो, दैट इज 5/2 में अगर आप 2/5 ऐड करोगे तो भी वही आंसर आएगा जो कि 2/5 में 5/2 को ऐड करने पे आता है।
ठीक है, देयर विल बी नो चेंज। तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है अंडर एडिशन जो है वो सभी नंबर, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, सब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है मूव द नंबर, नंबर को हमें इधर से इधर लेके जाना है, ठीक है, ये लेके गए तो हमारे पास आंसर अगर सेम आता है तो हमारा नंबर्स जो हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। इट मींस नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर चारों ही अंडर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन की। हाँ जी, सबसे पहले हम लेते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन होल नंबर। होल नंबर से 5 माइनस 2 इट शुड बी इक्वल टू 2 माइनस 5। क्या ऐसा है? नो, नेवर, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। इट मीन्स a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है ना कि नंबर्स को मूव कर दो, ऑपरेटर वहीं के वहीं रहना चाहिए हमारा। लेकिन दोनों केसेस में, एक केस में हमारा आंसर 3 आ रहा है, एक केस में माइनस 3 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल। इट मीन्स होल नंबर तो हमारे सब्ट्रैक्शन को फॉलो ही नहीं करते हैं, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो ही नहीं करते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। फिर हम इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स के केस में भी यही होगा, एक में पॉजिटिव आंसर आएगा तो एक में नेगेटिव आंसर आएगा अगर 3 नंबर्स है तो। सपोज एक हमने लिया माइनस का 5 और दूसरा हमने लिया 2 ही ले लिया। सेकेंड टाइम पहला एक नंबर 2 है और एक माइनस 5 है, यही है ना। सब्ट्रैक्शन का तो ऑपरेटर है तो बीच में ऑपरेटर ये लगाया, 2 को हम आगे ले गए और इधर माइनस 5 आ गया। इसमें क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5 दैट इज 7 और इधर हम देखें तो इट इज माइनस 7। इट मीन्स इट इज नॉट फॉलोइंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं एक रैशनल नंबर का। अब रैशनल नंबर में एक सपोज हमने लिया 5/2, सेकेंड नंबर लिया हमने 3/2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये किसके इक्वल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रूल? क्या कहता है कि 3/2 को आगे ले आओ और 5/2 को पीछे ले जाओ। एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा नेगेटिव आएगा। इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा? 2/2 और इस केस में आंसर क्या आएगा? -2/2। इट मीन्स 1 एंड इधर क्या आएगा? -1 विच इज नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मीन्स रैशनल नंबर्स आर also do not follow the commutative property under subtraction. नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए? a इंटू बी शुड बी इक्वल टू b इंटू अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। होल नंबर के केस में 5 इंटू 2, ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5, नो प्रॉब्लम। अगर हम इंटीजर्स का केस लेते हैं तो -5 इंटू -2 इट विल बी इक्वल टू -2 इंटू -5। अगर हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, 5/2 इंटू -3/2 इट विल बी इक्वल टू -3/2 इंटू 5/2। इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन के केस में सभी नंबर्स के सेट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन की। अब जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो हमारा रूल क्या कहता है? रूल कहता है a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a। क्या ये पॉसिबल है? एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। होल नंबर्स में हमने कहा 5/2 और इधर क्या आ जाएगा? 2/5। इट मीन्स नॉट फॉलोइंग। सिमिलरली इंटीजर्स के केस में हम नेगेटिव ले लेते हैं एक को, तो इट विल नॉट बी इक्वल टू -2/5, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स ले लेते हैं। अगेन 5/2 को हम डिवाइड करते हैं 2/5 से और सेकेंड केस में हम क्या करेंगे? 2/5 को डिवाइड करेंगे 5/2 से। क्या ये इक्वल आएगा? कभी भी नहीं आएगा, नेवर। इट मीन्स डिवीजन इज ऑल्सो नॉट फॉलोइंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल द नंबर सेट्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एक बार फटाफट से जो भी हमने किया है उस प्रॉपर्टी का ओवरव्यू ले लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? नंबर को मूव करना। नंबर को मूव करना मतलब a प्लस बी एंड b की जगह a ले आते हैं, a की जगह b ले आते हैं, तो b प्लस a के इक्वल आना चाहिए। या फिर अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो a माइनस बी शुड बी इक्वल टू b माइनस a। और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो a इंटू बी शुड बी इक्वल टू b इंटू a। डिवीजन की बात करें तो a बाय b शुड बी इक्वल टू b बाय a। अब देखते हैं किस किस केस में ये ट्रू होता है। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो एडिशन के केस में नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर्स और रैशनल सभी के सभी एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में कोई भी फॉलो नहीं करता है। क्यों फॉलो नहीं करता? क्योंकि a माइनस बी विल नॉट बी इक्वल टू b माइनस a।
एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियस बात है। मल्टीप्लिकेशन के केस में चाहे हम किसी भी ऑर्डर में करें, 2 इंटू 5 करें या 5 इंटू 2 करें, हमेशा सेम रहेगा। तो सभी फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, लेकिन डिवीजन के केस में कोई भी फॉलो नहीं करता। वंस अगेन द सेम रीजन जैसे हमारे सब्ट्रैक्शन का था वही डिवीजन का है। 5/2 विल नेवर बी इक्वल टू 2/5। ओके, चाहे आप अब केस कोई भी ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मीनिंग होता है मूव द ब्रैकेट। जैसे प्रीवियस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम क्या कह सकते थे, मूव द नंबर। एसोसिएटिव में होता है मूव द ब्रैकेट। इसका मीनिंग क्या है, इसमें हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर्स होते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हम ऐसे क्या कह सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी। सिर्फ हम ब्रैकेट्स को मूव करते हैं। सपोज इन दिस केस ब्रैकेट वाज हियर एंड इन दिस केस ब्रैकेट इज हियर। अब ये तो आपको पता ही है कि जो चीज ब्रैकेट में होती है उसे हम पहले सॉल्व करते हैं। मीन्स इस केस में पहले हम b प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उस वैल्यू को a में ऐड करेंगे। इसमें पहले a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर c को ऐड करेंगे। आई थिंक एडिशन में इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सी विद एग्जांपल। इसको 5 लिया हमने, सेकंड नंबर को 2 लिया हमने, इसको 3 लिया, और इस केस में 5 प्लस 2 प्लस 3। अब इसमें हम 2 और 3 को पहले ऐड कर देते हैं। इट विल कम आउट टू बी 5। अब फिर 5 प्लस 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारा। इसमें हम 5 और 2 को ऐड कर देते हैं, 7 7 प्लस 3 विल बी 10। मीन्स ये हमेशा सेम रहेगा। अब यही सेम एग्जांपल, इसी टाइप का एग्जांपल हम इंटीजर्स के लिए लेके चलते हैं। इंटीजर्स के केस में a को मान लीजिए हमने -2 लिया, b को हमने लिया प्लस का 5 और c को फिर से हमने -3 लिया। -2 प्लस 5 -3, इसमें ब्रैकेट हमारी यहाँ आ जाएगी और इस केस में ब्रैकेट हमारी यहाँ आ जाएगी। इट विल कम आउट टू बी -2 और 5 - 3 विल बी इक्वल टू +2 एंड इट विल कम आउट टू बी 0। और इस केस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो -2 एंड 5 3 3 - 3 दैट विल अगेन कम आउट टू बी 0। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स भी फॉलो करते हैं अंडर एडिशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के केस में। सपोज a हमारा -5/2 है, b जो है वो 3/2 है एंड c हमने लिया 7/2। नाउ a प्लस b मतलब -5/2 प्लस 3/2 प्लस 7/2। ओके, अब इस केस में ब्रैकेट जो है वो हमारी यहाँ आ जाएगी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी -5/2 प्लस 10/2 और इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/2 प्लस 7/2। इट विल कम आउट टू बी 5/2 और इन दिस केस आल्सो इट इज 5/2। तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में सभी नंबर्स फॉलो करते हैं। नाउ वी विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन। नाउ इंटीजर्स होल नंबर्स का एक एग्जांपल लेते हैं हम इस केस में। a की वैल्यू सपोज इट इज 3, b इज 5, c हमने ले लिया मान लीजिए -2। ओके, सॉरी होल नंबर था ना ये तो हमारा, तो ये c हमने 2 ले लिया और इधर भी हमारे पास ऐसे ही एक को 3 लिया, अंदर 5 -2 हो गया। ओके, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं इट विल कम आउट टू बी -2, ये भी -2, आंसर आ गया -4 और इधर हम अगर सॉल्व करें तो इट विल कम आउट टू बी 3, 5 - 2 is 3, इट विल कम आउट टू बी 0। इट मीन्स दे डू नॉट फॉलो। ओके, नेक्स्ट हम इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स में कोई नेगेटिव ले लेते हैं। मान लीजिए a को हमने लिया -2, b को हमने लिया 5 ले लिया, c को हमने लिया -3। ठीक है, तो ब्रैकेट क्या कहती है, यहाँ लगेगी ब्रैकेट और इस केस में -2 माइनस अंदर क्या लिया हमने 5 -3 प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं इट विल कम आउट टू -7 प्लस हो जाएगा 3 और इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो इट विल कम आउट टू बी -4। नाउ अगर हम इसे सॉल्व करते हैं इट विल कम आउट टू 5 + 3 is 8, इट विल कम आउट टू बी -10। तो इंटीजर्स के केस में भी दे डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सपोज रैशनल नंबर के हम एग्जांपल ले लेते हैं 5/2, 3/2 एंड 7/2। इनके ऑर्डर्स चेंज करेंगे, ब्रैकेट्स को चेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दोनों केसेस में चेक कर लेते हैं। 5 - 2 3 is 2, 2/2 - 7/2
और इसको हम सॉल्व करेंगे तो -5/2 आ जाएगा हमारा। और इस केस में अगर हम सॉल्व करें तो इट विल कम आउट टू बी 5/2 एज इट इज रहेगा। पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी -4/2। ये 5/2 प्लस 4/2 हो जाएगा हमारा। आंसर विल बी 9/2। तो हमारे पास आंसर जो है वो दोनों केसेस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स दे डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन के केस में करें तो तीनों की वैल्यूज कुछ भी ले लीजिए, हमेशा सेम ही रहेगा। 5 × 2 × 3 एंड 5 × 2 × 3। पहले आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये सेम रहेगा। अब अगर आप होल नंबर्स सॉरी इंटीजर के केस में लोगे तो आप नेगेटिव ले लोगे इन्हीं नंबर्स को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रैशनल नंबर्स लोगे तो इनमें डिवाइड बाय 2 ले लीजिए, इसमें डिवाइड बाय 3 ले लीजिए, इसमें डिवाइड बाय 5 ले लीजिए। डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन केस में दे विल फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज डिवीजन केस। नाउ डिवीजन के केस में हमारे पास होल नंबर्स का एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक को 2 लेते हैं, सेकेंड नंबर इज 5 डिवाइड बाय 3। ठीक है, और इस केस में भी हमारे पास 2 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ऑब्वियस है, कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। 2/5 डिवाइड बाय 3 का मतलब क्या है? 1/3। और 2 डिवाइड बाय 5/3, 5/3 का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करोगे तो 3/5, इट विल कम आउट टू बी 6/5। और अगर हम इसे देखें तो 2/15, दे आर नॉट इक्वल। तो सेम, जब हमारा सिंपल होल नंबर्स में ही इक्वल नहीं है तो इंटीजर्स में नेगेटिव साइन लगा के कर लीजिए, और रैशनल नंबर के केस में हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, इसको डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5। अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, लेट्स चेक। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये लास्ट टॉपिक है बस। -2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 हो जाएगा। और इसको अगर हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो इसको भी रिवर्स ले लेंगे हम। और इसको अगर हम सॉल्व करें RHS को तो इट विल कम आउट टू बी, डिवाइड को हम डिवाइड ही रहने देंगे क्योंकि पहले हमें ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। 5/3। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 5 5 25/6 हो जाएगा। और 2/5 के साथ हमें डिवाइड करना है। डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो उसके आगे जो भी नंबर्स होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स लेटर ऑन एंड इट विल कम आउट टू बी 12/125। ओके, और इधर क्या आ जाएगा आपका? -4/25 इंटू 5/23 एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट -20/75, जिनका इन दोनों नंबर्स का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो इट मीन्स rational numbers also do not follow the associative property. Okay, I think that's all for today. It is video हमारी बहुत लंबी हो गई है, more than enough. Okay, take care, bye bye.